See, in the first instance, I would like to condemn it in the most strong words, not only as President of the Congress Party in Jammu and Kashmir, but as a Kashmiri as well, as a Muslim. The kind of perpetration and the kind of designs behind were, I think, the people who are here, the stakeholders, the poniwalas, the taxiwalas, all small time workers here have proved such exemplary that the people who had designs of dividing this country on the religious lines, the people who are against the peace, the people who wanted to hit the economy of the state, especially Kashmir, have failed. It's because of them. On one side, if I commemorate them, on the other side, I commemorate those people also, people who have lost their dear ones. And they certified, they verified, and they clarified the situation of the people of Jammu and Kashmir, especially Kashmir, that Kashmiris are not Athankwadis, Kashmiris are not anti-Indians, Kashmiris are peace-loving, and it is they who saved their lives and they reached their homes. So it's a big thing, it's a big message. Having said so, Congress Party has decided not to make it a point of politics. We are not going to politicize it, because the day it happened, our leader Rahul Gandhi was in US, he called me, and our president Kharge ji, he called me, and both of them, they were very clear in this thing that we don't have to politicize it. We have to keep our cool, we have to be as reasonable as anything. We don't have to try to score points on that. So that is what we are doing, though there are questions within questions. Many questions can be asked this time, but we are not going to ask those questions this time, because the whole nation is mourning, and we Kashmiris as part of the nation, we are also mourning, and we will raise these questions only when the proper time comes. But the factory of terrorism, Pakistan, is not a stop yet, sir. They are continuously violating the ceasefire, the LOC, sir. See, I won't like to get into those things now. It is a series of actions and reactions. I would rather, as a Kashmiri, request both the countries, because as Kashmiri I know
that the battleground tomorrow would be Jammu and Kashmir. And we would be the first casualties of any war. We have been the casualties of war so many times. Kashmiris don't want war. Kashmiris don't want hostilities, both sides. May it be that side, may it be this side. So I request both the sides with folded hands, not as a Congress chief here, but as a Kashmiri, that both the countries should keep their cool and avoid hostilities. Thank you. Bilawal Bhutto Zardari has threatened India. I would not. No. Please don't try to put words in my mouth. I said we don't want to politicize it right now. नहीं, जैसे लगातार 4 दिन से कहा जा रहा है कि ये दिलदोज वाक़ा है, ये कोई साधारण वाक़ा नहीं हुआ है और जो एजेंडा लेकर टेररिस्ट ने ये हादसा अंजाम दिया, मारने और किलिंग के साथ साथ कुछ जो वहां से खबरें निकल आई कि बच्चों और महिलाओं को अलग करके और फिर रिलीजन को पूछ के जो चीज हुआ, दैट मीन्स वो एजेंडा है और उसके बाद ये वारदात पेश की। मेरे ख्याल से हमने जैसे कहा कि ये न सिर्फ इंसानियत का कत्ल किया उन्होंने, क्योंकि इनोसेंट लोग थे, टूरिस्ट थे, और न सिर्फ कश्मीरियत पर अटैक किया बल्कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की माशियत पर ही अटैक किया, क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त जो जरिया था जो जीवन गुजारने का था वो टूरिज्म ही था हॉर्टिकल्चर के बाद। तो इस वक्त थोड़ा सा लोगों की उम्मीदें बढ़ी थी, तो ये सब कुछ ठप कर दिया और साथ में एक एजेंडा दे गए। अब सवाल ये है कि अगर पूरे मुल्क को इस एजेंडे को हराना है, जो एजेंडा वो दिए, तो यही एक मौका है कि जब पूरे मुल्क को, सारे भाईचारे को इकट्ठा होकर एक आवाज उस एजेंडे को हराना चाहिए। न बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एजेंडा उनने दिया उस एजेंडे पर कुछ लोग देश में मतलब उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आज उनकी उस बात को लेकर देश के कई कोनों में कई अनासिर, कई फिरके, कई पार्टियां उसको आगे बढ़ाएंगे, तो उसका मतलब साहब कि वो टेररिस्ट के उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। बल्कि उसकी मिसाल जम्मू कश्मीर के लोगों ने दी, चाहे वो यहाँ पर हिंदू रहते हैं, डोगरा रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं। आपने देखा स्पॉन्टेनियस तरीके से जो रिस्पॉन्ड किया और एक भाईचारे की आवाज खड़ा कर दी। ये शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पिछले 30-40 साल से कभी नहीं। बड़ी ताकतें लगी, बड़ी कोशिशें पीछे से आई, मगर कभी भी यूनाइटेडली जम्मू कश्मीर और पूरा भारत इस तरह से खड़ा नहीं हुआ जिस तरह से आज इस पर हुआ। मेरे ख्याल से यही एक सबक है पूरे देश के लिए कि अगर हमें इन अनासिर को हराना है, इन शरारतों को हराना है, तो यही मौका है जब हम सबको एक आवाज में खड़ा होकर के, मेरे ख्याल से ये एक माइलस्टोन साबित हो सकता है पूरे देश के लिए कि अगर इस भाईचारे के मैसेज को आगे पहुंचाए। लेकिन अभी भी जो टेरर की फैक्ट्री है पाकिस्तान, वो अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार एलओसी पर सीज फायर की वायलेशन की जा रही है और जिसका हिंदुस्तानी आर्मी लगातार मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। कॉन्फ्लिक्ट है और ये तो कोई आज नहीं, लगातार हम दहाइयों से सुन रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से उसके लिए हमारा फौज, हमारा डिफेंस सिस्टम और हमारी सरकारें कॉम्पिटेंट है उस तरह के हरकत को जवाब देने के लिए। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ आबादी वाला मुल्क है और यहाँ जो सरकार बनती है पूरी अथॉरिटी के साथ बनती है और किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है कि अपने देश के मतलब जो हमारे सिटीजन हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना और उनकी हिफाजत करना। तो ये भी सरकारों को देखना पड़ेगा, जब इतना बड़ा मैंडेट मिलता है उतना ही ताकत होता है। और इस तरह की घड़ी में इस वक्त यही आवाज जा रही है चारों तरफ से, हम सरकार के किसी भी उठाए हुए स्टेप के साथ है। जो भी स्टेप वो टेररिज्म को और इन अनासिर को एलिमिनेट करने के लिए जो भी उठाएगा, पहले भी देश कई बार यूनाइट हुआ, तो आज भी मौका है और इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरी तरह से सपोर्ट दिया
सरकार को कि आप जो भी स्टेप उठाना चाहेंगे जिससे भी हमारे शहरियों को सुरक्षा मिले, मुल्क को राहत मिले, फ्रीली घूम सके, फैल सके, उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम व्यक्ति उसके साथ में हैं, मगर खाली आईवाश नहीं होना चाहिए। गीदड़ भभकी भी पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है या तो सिंधु में पानी बहेगा या तो उनका खून बहेगा। देखिए, ये आगे आने वाली चीजें हैं। मेरे ख्याल से पहले भी इस तरह के जितने भी बड़े हादसात हुए तो भारत सरकार ने कुछ स्टेप उठाए, रिस्पॉन्सेज उधर से आए। आज भी जिस तरह का हादसा हुआ, भारत सरकार ने एक्सपेक्टेड लाइन्स पर कुछ अपने इकदामात उठाए। इकदामात उठाना टाइमली एक बात है, बट उसको पाई तकमील, मतलब उसको फाइनली इम्प्लीमेंट कराना, वो भी उसके लिए देश यूनाइट है और हम दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं सरकार को। जो आपने स्टेप लिए उसको पूरी ताकत के साथ इम्प्लीमेंट कीजिए। तो इसलिए बाकी डायलॉग डिलीवरी उधर से आई, इधर से आई, उसमें हमें इस वक्त ज्यादा उलझना नहीं। हमें अपने मुल्क को देखना है, अपने शहरियों को देखना है, अपनी सरकार को हम दिल खोल के सपोर्ट दे रहे हैं इस मामले में। जो भी स्टेप आप लेंगे उसमें साथ। लंदन में जब भारतीय लोग पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पर पाकिस्तानी दूतावास के एक अधिकारी ने कहा, चुप हो जाओ वरना गला काट देंगे। ये बेशर्मी की हद है सर। देखिए, ये फिर फर्दर डिटेल्स की बात है। हम पहलगाम आए हैं, यहाँ पर इस वक्त अपने गमजदा लोगों के साथ में जो इस वक्त एक खौफ के तहत में रह रहे हैं, और जो मर्दानगी का काम इनने किया उस पार्ट को हम अप्रिशिएट करने आए। और बाकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, इन्वेस्टिगेशन में सबको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि ये हादसा हो, इसके पीछे कौन था और कहां से आए, कौन इनके सपोर्ट में थे, उसके लिए कोई शक की बात नहीं। कुछ छिटपुट जगहों पर हमने देखा है कि कश्मीरी लोगों के साथ जो है गलत व्यवहार किया जा रहा है। उन लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ, जो इन टेररिस्ट के दिए हुए एजेंडे को पूरा करना चाहते होंगे वो जरूर उस तरह की हरकत करेंगे। वो तो उनका एजेंडा है कि फर्दर अदर एरियाज में उनके दिए हुए एजेंडे को, अगर इनने कौन हिंदू कौन मुसलमान पूछा, अगर रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी कोई पूछेगा भाई हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ या पंजाबी अलग हो जाओ, कश्मीर जो है, तो दैट मीन्स वो उन्हीं के एजेंडे को बूस्ट करें। मंत्री नीतीश राणे भी कह रहे हैं कि पूछ लो, अगर हनुमान चालीसा कोई व्यापारी बता रहा है तभी उससे सामान खरीदो, वरना मत खरीदो। चलो, ये कांग्रेस का सोच नहीं है, ये उन्हीं का सोच है जिसकी वजह से आज देश में ये बदतरीन हाल